اساتذہ کو اور کچھ اور دیگر افراد کو شہید کیا گیا اور وہ بے دردی کے ساتھ شہادت کی گئی۔ ان کے جسموں کو اور ان کے مقدس جو ان کے جسم تھے ان کو پامال کیا گیا۔ اور یہ بنیادی طور پہ ایک میسج ہوتا ہے ایک ٹرائبل معاشرے کے اندر کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ہے، کوئی شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی لڑائی شروع کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت وہاں کرم کے جتنے بھی اکابرین تھے، عمائدین تھے، جس میں وہاں کی مرکز ہے، انجمن حسینی ہے، اسی طریقے سے علماء اہل بیت ہیں اور مجلس ادارت المسلمین ہیں اور ہمارے میر آغا مزمل ہیں، ان لوگوں نے رول پلے کیا کہ ایک ٹرائبل وار شروع نہ ہو، رد عمل شروع نہ ہو۔ اور ان لوگوں نے اس کو آئین اور قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے ایک بڑا ہی زبردست رول پلے کیا۔ لوگوں کے پریشر کے باوجود، لوگوں کے احتجاج کے باوجود انہوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ کی طرف جانے نہیں دیا اور ایک احتجاج کیا، ان شہداء کی جو ہے رسومات ادا کی، رسم کل ہوا، دیگر رسومات ہوئی، لیکن مطالبہ کیا کہ حکومت اور ریاست جو ہے اس کی ریٹ بحال ہو اور ریاست جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتار کرے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ قاتلوں کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایف آئی آر جو ہے وہ پراپر درج نہیں ہوتی۔ پھر جب پریشر بڑھتا ہے، جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس میں ان نون پرسن جو ہے وہ مینشن کیے جاتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر جب ایف آئی آر درج ہوگی، ان نون پہ بھی درج ہو گئی، تو اب رٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونی چاہیے تھی اور پراپر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کیا جاتا۔ اور اگر فرض کریں کہ کوئی ڈائریکٹ بندہ نہیں ملتا تو وہ جو سہولت کار تھے، وہ جنہوں نے فیسلٹیٹ کیا ہے، ان کو ڈیٹین کیا جاتا۔ لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی اور کسی طرح کی کوئی گرفتاری وہاں پر نظر نہیں آئی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ زمینوں کا مسئلہ تھا، جس کے لیے اس کی ڈیمارکیشن ایز پر ریونیو ریکارڈ کرنے کی بات کی گئی تاکہ لا پریویل کرے، قانون پریویل کرے اور مائٹ از رائٹ کے تحت نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق مسائل کو حل کیا جائے۔ تو ہمارے اس ریکمنڈیشن کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، جس کمیشن کے ابتدائی اجلاس ہوئے، لیکن اس کمیشن کی کارکردگی بھی ابھی بالکل معطل ہے اور وہ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا، چونکہ کرم ایجنسی کا تمام تر ریونیو ریکارڈ اویلیبل ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق زمینوں کے تنازعات حل کر دیے جائیں تاکہ یہاں پر کسی کو ایک پلے کرنے کا یا ایک فالٹ لائن انیشیٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں اور ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے ہیں، ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ہم جرگہ کر رہے ہیں، ہم رابطہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، ہم نے وہاں پر سیز فائر کروائی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق قاتلوں کو، دہشت گردوں کو پکڑا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ریاست جو ہے وہ یا بالکل ہمیں اس مسئلے کے اوپر مفلوج نظر آتی ہے اور لوگوں کے یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ کیا اس وقت جو وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا وہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں یا ان سے خوفزدہ ہیں؟ کیوں وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے؟ اور اگر وہ ان سے خوفزدہ ہیں تو پھر مقامی لوگ جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ کوئی رول پلے کریں، اور اگر خوفزدہ نہیں ہے تو پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ نظر آنی چاہیے۔ لہٰذا 12 اکتوبر جو ہے وہ تمام عمائدین نے مشترکہ طور پہ ایک کال دی اور کہا کہ 12 اکتوبر کو ہم جو ہے وہ آپ کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس وقت تک قاتلوں کی گرفتاری کی جائے، لیکن قاتلوں کی گرفتاری نہیں کی جاتی۔ پھر بھی ہم وہاں پر ایک بالکل مہذب ترین ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں اور وہ ایک کیمپ لگایا جاتا ہے جس کیمپ میں لوگ بیٹھ کر، باقی تمام زندگی نارمل ہے اور کیمپ میں لوگ بیٹھ کر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اس میں تمام عمائدین جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ایک صرف ایک کیمپ جس سے پتہ چلے کہ نہیں لوگ متوجہ ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی۔ ہم اس سب کے باوجود وہاں پر ایک بڑا ہی متعصبانہ رویہ دیکھتے ہیں، دہشت گردوں کے لیے بڑا ہی نرم رویہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں، پارا چنار وہ علاقہ ہے جو دہشت گردوں کے مقابلے میں قدرتی دفاع کریٹ کرتا ہے، چونکہ وہاں کے لوگ دہشت گردوں کو اور طالبان کو کبھی بھی انہوں نے ایکسیس نہیں دی۔ یہ وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو اسلحہ لے کر چلنے کے لیے اور روڈ اوپن ڈے بنانے کی اجازت نہیں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر نہ تو قبائلی لوگ اسلحہ لے کر چلتے ہیں روٹین کے اندر اور نہ ہی وہاں پر جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو کسی طرح کا کوئی لوکل تھریٹ ہوتا ہے۔ جو تھریٹ ہوتا ہے وہ اکراس دا بارڈر ہوتا ہے، وہ بارڈر کی دوسری طرف افغانستان کی۔ یہ 3 سائڈ سے افغانستان کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ پہلے کراس بارڈر انفلٹریشن ہوئی، دہشت گرد ادھر سے آئے، ملیٹنٹس آئے، داعش کے لوگ آئے، ٹی ٹی پی کے لوگ آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر کاروائیاں کی اور ہمارے مقامی لوگوں نے، یعنی افواج جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی، لیکن ہمارے لوگوں نے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کیا اور وہاں پر اس دہشت گردی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو یہ علاقہ پاکستان کا نیچرل ڈیفنس ہے۔ یہاں کے لوگ پاکستان کا فطری دفاع خود کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ ملیٹنسی کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ریسپانس چاہتے ہیں اور وہاں ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن ان کو ریسپانس کیا دیا جاتا ہے کہ یک دم
बजाय नेगोशिएशन के साथ मामलात को हल करने की बजाय कई एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो अकर करती हैं। जिनमें से एक चेन ऑफ इवेंट ये है कि एक जो पाराचनार से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ के रिहायशी हैं, वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं और पेशावर बाईपास के ऊपर उनके ऊपर अटैक होता है और उनकी शहादत हो जाती है। उनके साथ कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद बुशैरा एक गाँव है, वहाँ से ये बहाना बना के कि ये मस्जिद इमाम बारगाह की तामीर कर नहीं कर रहे बल्कि एक मोर्चा बना रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर बुशैरा से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बुशैरा को मिलिटेंट्स की खास सरपरस्ती और जो सपोर्ट है वो हासिल है। नतीजा ये होता है कि वहाँ पे भी एक जंग शुरू हो जाती है और वहाँ पे बुशैरा की तरफ से जंग मुसल्लत की जाती है, जिसमें बहरहाल काफ़ी सारी कैजुअल्टीज़ हुई और लोग शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। अभी ये मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर जरगा चल रहा है और इसी दौरान आपको पता है चूँकि रोड अनरेस्ट का शिकार हो गया, तो पहले हमें सद्दा के अंदर मुख्तलिफ मूवमेंट्स नज़र आती हैं जिसमें दहशतगर्द जो हैं वो एक पॉलिटिकल मूव करते नज़र आते हैं और वो वहाँ पे ऐलान करते हैं कि हमारे लिए गज़ा नहीं है, बल्कि हमें जो है वो पाराचनार जाके जो है वो हमला करना है और हमें पाराचनार जाके इंतकाम लेना है। कौन है जो उनको ये लाइन दे रहा है? कौन है जो इस कैफियत के अंदर उन लोगों को इस तरीके से डाइवर्ट कर रहा है? कौन है जो इसराइली और अमरीकी ईमा के ऊपर गज़ा के ऊपर इसराइली जारहियत को छुपाना चाहता है और ऐसे इशू छेड़ना चाहता है जिसके नतीजे में आप जो है वो लोकल इश्यूज के अंदर जो है वो डाइवर्ट हो जाएं? कौन है जो ये इन इश्यूज को ओवरकम करके कहता है कि नहीं जी चलो चलो पाराचनार की तरफ, तो हमें तो पाराचनार के ऊपर जंग मुसल्लत करनी है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। ये मुतासबाना रवैया हमारे लिए बयान किया गया है। हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि वो लोग जो अमन को वहां पे प्रिजर्व करना चाहते हैं उनके साथ ऐसा मुतासबाना रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? क्या दहशत गर्दों को सपोर्ट दी जानी मकसूद है? क्या टीटीपी और दाइश के लिए कोई नर्म गोशा मौजूद है? क्या वहां पर लॉ एनफोर्समेंट और इसी तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मकामी लोगों को डिफेंड करने के लिए नहीं है? क्या वो कातलों को गिरफ्तार करने के लिए नहीं है? तो पहले 7 अफराद थे, अभी 12 अफराद शहीद हो गए हैं, लेकिन हमें कोई ऑपरेशन उनके खिलाफ नजर नहीं आता जिन्होंने ये लोग शहीद किए हैं, जिन्होंने जो है वो एक ऐसे कन्वाय के ऊपर जो लॉ एनफोर्समेंट की प्रोटेक्शन के अंदर था। पहले भी सद्दा में इस तरह के हमले हो चुके हैं कि जहां जो है वो इनकी प्रोटेक्शन के अंदर लोगों को शहीद किया गया, ट्रक चलाया गया, लोगों के जिस्म टुकड़े टुकड़े किए गए, अभी फिर इस तरह के वाकयात हो गए। लेकिन अब देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। अब खुलासा ये है कि इस वक्त हमारे पास ये कुरम एजेंसी के, पाराचनार के और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मसूलिन यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल बहुत संगीन है। हमने पहले आपके ज़रिए से भी और इसके अलावा हुकूमत को मुख्तलिफ लेटर्स के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बारहा मुतवज्जे किया कि पाराचनार एक फ्लैश पॉइंट बन रहा है। पाराचनार में अगर कानून को अमलदराज नहीं किया गया, कातलों को नहीं पकड़ा गया, तो पाराचनार में एक और बहरान जन्म लेगा और फिर हम देखते हैं कि बजाय इसके कि अगले कातलों को पकड़ते, नए लोग शहीद कर दिए जाते हैं और अब इस शहादत के अंदर तो वाज़े तौर पे जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है। क्योंकि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रोड को प्रोटेक्ट करने की, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कॉन्वॉय को प्रोटेक्ट करने की। कॉन्वॉय पे अटैक होता है, रोड पे अटैक होता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा हो गया है। तो अब हमारा इस पे कंक्लूडिंग क्वेश्चंस और वो ये है, पहली बात कि मजलिस रहत मुस्लिमीन बावजूद इसके कि हमारा पूरी तवज्जो और वो तवज्जो हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, हमारी पूरी तवज्जो मजलूमीन फ़लस्तीन के साथ है। हम पाकिस्तान की सरजमीन से उन मजलूमों को मैसेज देना चाहते हैं। हम आम ज़ालिमों के मुकाबले में पाकिस्तान की सरजमीन से आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। आपके इल्म में है कि हम शिया सुन्नी यूनिटी के दावेदार हैं। हम असलन शिया सुन्नी मसले को कबूल नहीं करते हैं। तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र को लेके चलते हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद आपके इल्म में है कि फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस है जिस पे आप देखेंगे तमाम सोसाइटी के तबकात और स्कूल ऑफ थॉट शरीक होंगे। हम शिया और सुन्नी तफ़रक़े को हराम समझते हैं। हम अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन को हराम समझते हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ किया गया है, जिसमें जानों के साथ खेला गया है, इसमें रियासती ज़िम्मेदारी भी यकीनी तौर पे है और मिलिटेंट्स जो है उनको खुल खेलने का मौका दिया जा रहा है। मजलिस रहत मुस्लिमीन इस सारी कैफियत के बावजूद इन मजलूमों के साथ खड़ी होगी, पाराचनार की आवाम के साथ खड़ी होगी। जो वो कलेक्टिव डिसीजन करेंगे, हम थ्रू आउट द कंट्री जो है वो उनके मफादात को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके आइन और कानूनी हकूक को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और हर तरह से अपना सियासी, सफारती, अवामी जो रोल है वो प्ले करेंगे और हम मजलूमीन पाराचनार को, कुर्म एजेंसी को इस कैफियत के अंदर तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे सीज़ फायर हो। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे कातिलों की गिरफ्तारी दोनों मराहिल की, उनकी जो पहले असातिज़ा वाले थे और अभी जो कातिल हुए जो कातिल जिन्होंने कत्ल किए हैं, उनकी इलाके मालूम है, लोग मालूम है,
उनकी फौरी तौर पे गिरफ्तारी हो, रिट ऑफ द स्टेट जो है वो नज़र आए। और अगर अल्लाह ना करे ऐसा ना हो तो फिर ज़ाहिर है हम लोग जो अमन के लिए काम करते हैं, हमारे लिए वहाँ रूम और गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। और फिर प्रैक्टिकली जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर हासदों की निगाह है, दुश्मनों की निगाह है, शर वालों की निगाह है, मिलिटेंट्स की निगाह है। पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी एट इट्स पीक चली गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर अफगानिस्तान बॉर्डर ने पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया है, बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक। अगर ये आपका नेचुरल डिफेंस जो है, ये अगर मुतासर होता है, तो फिर दहशतगर्दी के लिए जो ये रुकावट है, अगर ये खत्म हो जाएगी तो दहशतगर्दी पाकिस्तान के गली कूचों में, इस्लामाबाद में आएगी। लिहाजा ये इस्लामाबाद का दिफा है, ये पेशावर का दिफा है, ये हमारे वतन का दिफा है। इन अवाम के साथ खड़े हों। लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कानून नाफिज करने वाले इदारों को और स्टेट की अथॉरिटीज़ को भी मुतवज्जे करते हैं, वज़ीर आज़म साहब को मुतवज्जे करते हैं कि आप अपोजिशन के बारे में नारेबाजी करने की बजाय अपने हकीकी काम और डे टू डे मैटर्स के ऊपर तवज्जो दें, जिनमें मुल्क के अंदर लॉ एनफोर्समेंट और कानून को प्रिवेल करना और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना जो है वो पार्ट ऑफ डे टू डे मैटर्स है, उनके ऊपर तवज्जो दें। और इसी तरीके से जो है वो फौरी तौर पर वहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जाए, कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और जो रस्ते हैं उनको ओपन किया जाए। और इसी तरीके से परमानेंट सोल्यूशन, चूंकि रस्तों को ओपन करना स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो परमानेंट रस्तों को बंद करने का राइट जो है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक और गजा बनाने की कोशिश की जा रही है, खुदा न खास्ता वहां पे भी गिजा खुराक दवा चूंकि लिमिटेड एरिया से आती है उसको बंद किया जाता है, यहाँ पे भी ये कैफियत क्रिएट की जा रही है ताकि उनके लिए ये सारे रास्ते जो बंद हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन इस सब के बावजूद आपके जरिए से स्टेट अथॉरिटीज को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतवज्जे करते हैं कि वो पारा चनार के ऊपर फौरी तौर पे अपना जिम्मेदारी अदा करें और वहाँ पर जो है वो शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए और पारा चनार के साथ जरगा करके फौरी तौर पे रोड्स को ओपन किया जाए, इमीडिएट ओपन किया जाए और दहशत गर्दों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जिसमें पारा चनार के मकामी लोग उनका साथ देने के लिए भरपूर तैयार हैं। आपका और आप सब साथी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइए, उसके बाद हमने का नाम नहीं ले रहा, स्टेट एजेंसीज जो है उस तरह से उधर और नहीं कर पा रही या करना नहीं चाह रही है, आपको क्या लगता है इसमें स्टेट का क्या फायदा है वहां पर डिस्टेबलाइज उस एरिया को करके? देखें, बुनियादी तौर पे जब आपकी वीकनेस होती है, अब सवाल पैदा होता है कि आपकी वीकनेस है तो नोशकी पे हमला हुआ है, आपकी वीकनेस है तो फ़र्ज़ करें बन्नू के अंदर अटैक हुए हैं, आपकी वीकनेस है तो पेशावर के अंदर मिलिटेंट्स आए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले तो ये गौर करना चाहिए कि वीकनेस कहाँ पर एग्ज़िस्ट करती है, लैकुनास कहाँ हैं, जहाँ से दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं। पिछली जंग के अंदर इन्होंने फेंसेस तोड़ी, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुई, दाइश और मिलिटेंट्स वहाँ से आए। क्या स्टेट अथॉरिटीज़ ने ये मसला अफ़गानिस्तान अथॉरिटीज़ के साथ उठाया? क्या वहाँ पर उन फेंसेस को मुरम्मत करके वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई गई? क्या वहाँ पर जो है ऐसे मैयर लिए गए कि आइंदा इस तरह का कोई कदम ना हो सके? प्रैक्टिकली ये हुआ। उसके बाद ये इसका मतलब है आप अपनी ग्रिप लूज़ करते जा रहे हैं। चतराल के ऊपर हमला हुआ, कई दर्जनों मिलिटेंट्स ने वहाँ पर हमला किया, हमारे कई अफराद जो है वो शहीद हो गए इस पाक वतन और मादर वतन का दिफा करते हुए। इसका मतलब है कि जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़कर उन मैटर्स में चले गए हैं कि आप अपना कोई सियासी ग्रज पूरा करना है, कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो आपका अल्टीमेटली जो असल काज है वो मुतासर होगा। तो आपका बुनियादी काज तो अपने मुल्क के लोगों को अमन अमान प्रोवाइड करना है। फिर मैंने ये जो एक अहम नुकता बयान किया, ये चंद लाख की आबादी है। ये आबादी जो है ये हमेशा से पाकिस्तान को दहशतगर्दों से इस रूट से कभी दहशतगर्द नहीं आ सके, क्योंकि ये आबादी उनको टॉलरेट नहीं करती। बाकी अफगान बॉर्डर में आबादियां टॉलरेट करती हैं, वो दोनों तरफ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। ये नेचुरल रुकावट है, यहाँ फौजों को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब बदकिस्मती से अगर ये लोग अपना रोल प्ले करें और इनके लोग मारे जाएं, तो अब रियासत जो है वो फर्ज करे अपना रोल प्ले ना करे, तो फिर इसका मतलब है वो दहशतगर्दों का साथ देने की तरफ जाएगी। ये वीकनेस है जो हमें दूर करने की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली इनकी नेग्लिजेंस भी है, इनकी अदम प्रायोरिटीज भी हैं और यकीनी तौर पे एन मुमकिन है कि कोई दहशतगर्दों का ऐसा प्रेशर भी हो कि जिसकी वजह से ये वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा है जो इनका ड्यू रोल वहां पर एग्जिस्ट करता है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।